300 plus totals in any edition, 2 world record chases, lower order fightbacks, and some inspirational individual performances. This World Cup has once again underlined the depth and growth of the women's game. Okay, I'm also recording this New heroes whole have emerged video and that's fresh going to happen. rivalries, just here. like this one tonight. India versus South Let Africa me see. have been forged. It's a true reflection of how far the women's cricket game has come. Competitive, how to do global, that and sound? more exciting than ever. More than 300 fans have attended this World Cup, and viewership records for women's cricket events have been broken. On behalf of the International Cricket Council, I'd like to extend a heartfelt thanks to the Board of Control for Cricket in India for being wonderful hosts, and for Sri Lankan cricket for their magnificent support. Thanks to the global broadcasters, including Geostar, media partners, the players, and of course to the fans around the world who have made this event so very special. I would now like to introduce the presentation party. Mr. Sanjog Gupta, ICC Chief Executive. Mr. Devajit Sayakar, ICC Board Director and BCCI Secretary. Dr. Mohammed Musaji, ICC Board Director and Cricket South Africa Vice President. Ms. Claire Connor, ICC Women's Cricket Committee Chair and former Captain of England. And Mr. Jay Shah, ICC Chair and one of the biggest supporters of women's cricket in the global game. To commence our final post-match presentation, we are honoured to welcome ICC Hall of Famer and India cricket legend, Ms. Mitali Raj, to place the ICC Women's Cricket World Cup 2025 trophy on the presentation podium. It's funny because oh, serious. Now I'd like to introduce and invite out the match officials to collect their medallions from Mr. Sanjog Gupta, ICC Chief Executive. Match referee, Michelle Pereira. On-field umpires, Eloise Sheridan and Jacqueline Williams. She's from Sri Lanka. Okay. TV umpire, Sue Redfern. And the fourth umpire, Namali Pereira. Let's now acknowledge the runners-up, who I think this evening have garnered so many more fans around the world as well. They've played with tremendous skill and spirit and determination right throughout this tournament. Congratulations to South Africa. You've been outstanding and have played such a pivotal role in the success and the spectacle of this World Cup. I introduce and invite South Africa team to come up to collect up their runners-up medallions. Presenting the medallions, Dr. Mohammed Musaji, Cricket South Africa Vice President and ICC Board Director, and Ms. Claire Connor, ICC Women's Cricket Committee Chair. Annika Bosch. Tasman Brits, who's had a brilliant 2025, including a century against New Zealand in this World Cup. In her first World Cup and a fighting 35 today, Anna-Marie Dirksen. Sonalo Jafta, South Africa's wicketkeeper. Marizanne Kapp, her 5th World Cup as she passed Geelong Goswami for most wickets in the history of the game. Masabata Klaas. Nadine de Klerk. Ayabonga Kaka. Sune Lys. Karabo Miso. Nonkululeko Mlaba. Tumi Sekakune. Nondumiso Shangeze, Chloe Tryon, and Laura Vulvart, the South African captain who has taken South Africa to the last 3 finals across ODIs and T20 events and is the leading run scorer in this World Cup. Laura, this is a tough one, I know this, so
and it's probably a little bit harder than most, but when I look at that group behind us at the moment, words like grit, determination, team, resilience all sort of spring to mind. What springs to mind for you, for this group and the campaign? Yeah, all of those words. I think I couldn't be prouder of this team for the campaign that we've had. Played some brilliant cricket throughout. Outplayed today. I think India played fantastically well. Unfortunate to be on the losing side, but I'm sure we'll definitely grow from this as a group. Let's talk tournament first, because I think if you said to most people, if you lost and were bowled out for 69 in the first game against England, and then you bowled out for 97 against Australia, most teams would have almost dropped their bundle. But you consistently went with the mantra, clear and present, right throughout this World Cup, and it worked so well for you to get through to the final. Yeah, I think we did so well to put those couple of bad games behind us. We're either really good or really bad, but thankfully there was a lot more really good throughout this tournament. I think we had so many different players stepping up. Amazing tournament for a lot of different players, and just proud of the resilience we showed to get all the way to the final. I think a lot of people sort of forget you're a new captain into this side. I can remember reading that you said that you wanted to make sure that it wasn't going to affect your batting. Well, it certainly hasn't. You've got the most runs for a captain in a World Cup, surpassing Belinda Clark. How did you get that balance right, still knowing that you had to lead this group? Yeah, probably didn't have my best year leading into this World Cup, and probably didn't start the tournament that well. But I think maybe overthinking it wasn't that good. Just try to... it's just another game of cricket, even though you're at a World Cup. Try to separate the two, the captaincy and the batting, and I think that sort of freed me up a bit come the back end of the tournament to just play my natural game and then focus on the captaincy at a different time. Let's get to today's game. You win the toss, you elect to have a bat first. It felt as if there was probably not as much swing for Mothersbaugh Cap in that first couple of overs. Yeah, we were hoping for a little bit more early on. I think there was still a little bit of something in the wicket though, so I do still think it was the right call to have a ball. That chase, I think we were in it for a lot of the chase. Just lost too many wickets. Mlaba, Kaka, Nadine de Klerk really pegged things back at the back of that innings too, because it looked at one stage India was sort of pushing up to that 350 plus mark. I think the last 16 overs they didn't go for double figures at all. Yeah, that was brilliant. I kept checking that scoreboard and they were definitely tracking for like a 350. That back end was amazing. I think we've been pretty good at that throughout the tournament. And I think we gave ourselves a good chance. I think 300 was about par and a good wicket, and we really felt that we could chase it. And you probably wouldn't have put too much thought into Shivali Verma at the start of the tournament, and then it would have been a little bit of scrambling coming into this match. Definitely her bowling. But yeah, I think she batted excellently. That's kind of the way she plays, really aggressive, and when it comes off like today, she can really hurt teams. I think she batted really well. There's a saying that the whole is greater than the sum of the parts, which I think is pretty much what you would say about this group. I do want to single out one person though, because she's a bit of an enigma in your side. She is fire and ice a little bit half the time. Mothersbaugh Cap, she's in her 5th World Cup. We might not see her back here on this stage again. What does she mean to South African cricket? Because she's ridden the highs and lows. Yeah, she's been absolutely phenomenal for so many editions of this tournament. Really sad that it's possibly the last one. I think the whole group really wanted to win it for her. I think she's been so great for South African cricket. She's sort of 2 players in one, and we're very lucky that she's on our team. Well, you guys have been absolutely wonderful for women's cricket this tournament. Commiserations today, but congratulations on a wonderful tournament. Thank you so much. Thanks, Laura. Thanks. And now it's time to put a brand new name on the trophy. After a tournament where they lost against England, South Africa and Australia, they then turned things around. It's the first time champions. It's the women in blue. It's India. May I invite the victorious team to step forward and receive their champions medallions from Mr. Devajit Saikai, BCCI Secretary and ICC Board Director, and Mrs. Mitali Raj, ICC Hall of Famer and Indian cricket legend. Sri Charani. Uma Chetri. Harleen Diol. Kranti Goud. Wicketkeeper, Richard Ghosh. Amanjot Kaur. The Vice Captain, Smriti Mandana.
Surinder Snehurana. Arundhati Reddy. She was brilliant in the semi-final. Jimmy Rodrigues. Player of the tournament, Deepti Sharma. Opening bowler, Renuka Singh Thakur. Player of the match, Shafali Verma. The live wire in the field, Radha Yadav. And in her 5th World Cup, the captain, Harmanpreet Kaur. Harman, how does this sit with you? The captain of the first team ever to win a Women's Cricket World Cup. You beat Australia in the semi. You beat South Africa in the final. You can bear with me. You take the winning catch. You're at home in front of this magnificent crowd. You've dreamt of this. Is it everything that you imagined? Seriously, I didn't understand what are you asking, but I'm so grateful for this crowd. They've been so amazing. Thank you guys for being there for us, for in all our ups and downs. And credit goes to entire our cricket team, BCCI, selectors, everyone back home. Thank you so much. It's got to be one of the greatest bounce backs in Women's World Cup history because you lose 3 on the trot against teams that finished above you. How did you speak to the team about just staying in the hunt for this moment? Yeah, last game also we spoke that self-belief was there that, even though we lost 3 back-to-back games, but we knew this team has something special to turn things around the table. So I think credit goes to each and every member. They stay positive. They knew what we have to do in the next 3 games. And I think everybody was so involved. They were there for day and night. I think this team deserves to be there. I think the script writers are already starting the Bollywood movie, and I'm going to figure out who's going to play you in it, but also who's going to play Shafali Verma, because we all sat there in the commentary box and went, what's happening here? Not with the bat, but with the ball. When did that plan was hatched, and when did you think, right, we're going to play with it? Yeah, I mean, when Laura and Sune was batting, they were looking really good, and I just saw Shafali standing there, and the way she was batting today, I knew today's her day. She was showing something special today, and I just thought I have to go with my gut feeling. If my heart is saying I should give at least 1 over to her, I'm gonna give her. And then I just asked her, can you bowl 1 over? And she was so ready, and she's always wanted to bowl for the team, and I think that was a turning point for us. She's only bowled 14 overs before tonight. Did you look at the coach and sort of not look at him a little bit, just wondering what he was going to say? Well, when she came to the team, that time we spoke to her, we might need your 2 or 3 overs, and she was like, no, if you give me the bowling, I'm going to bowl 10 overs for the team. And that shows how confident she was to bowl for the team, and I think credit goes to her. She was so positive, she was there for the team, and salute her the way, she was there for the team. 298 after the semi-final against Australia. Did you think maybe not enough at one stage? No, actually today's pitch was totally different because of the rain and overhead conditions. We knew this total is enough for the final game, because in the final game you always have little extra pressure on you. But still, we should give credit to the South Africa team. They batted beautifully. In the last moment, they panicked a little bit, and that's where we catch the game. And I think we as a group we have been talking about once they started doing little bit something here and there, we have to catch that. And I think that right time Deepti came and took those crucial wickets. I had the pleasure of sitting in the commentary box, and the cameras would pan to people in the crowd. So the very first team for India in a World Cup was back in
1978. It's been a long journey from then. You played in 2009. The team made it in 2005, and it was a bit of a rocky road. 2017, it was heartbreak. Likewise in 2022. Is part of this win, I know it's for this squad and your support staff, but I think a lot is also for the players that have come before you. Yeah, definitely. Every time after every World Cup, we came as a team and we always discussing like what we have to do to part that that line. And this time, last 2 years, Amol sir was there with the team and he was always telling us that this is not something this team is expecting from you guys. You have to come up with something special and you have to keep preparing yourself for the bigger occasion. And I think we should give credit to our sports staff and BCCI for showing trust on us. And this team was there for last 2 years. We didn't make so many changes. I think that shows they really invested in us. And today, I think because of everyone, we were standing here. The phrase has often been used about the Indian women's cricket team that they're the sleeping giant of world cricket. Well, you've well and truly woken up now. Is this just the start? Is this the start of a destiny? Yes, definitely. This is a start. We wanted to break this barrier, and now our next plan is make this habit because we are waiting for this moment. Now this moment has come. Now let's just making this habit. Now next year also World Cup and then Champion Trophy is there. So many big occasions are coming. We just want to keep improving day by day. This is not an end. This is just a beginning, and we just want to keep giving our best. Okay, my Hindi isn't great, but is Buddha high? Congratulations. Is that close enough? Yeah, there we go. Congratulations. Go get your trophy. Thank you so much. Harmanpreet Kaur, the captain of India, the captain of an Indian team that has won their very first Women's Cricket World Cup. She is going to get the trophy of the ICC President Jay Shah. It is the women in blue. कितनी दफे इस दरवाजे पे दस्तक दी है इस भारतीय टीम ने, निराश होकर लौटी है। 2005 में, 2017 में, 2025 में उस दरवाजे को तोड़ दिया है इस टीम ने। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियंस 2025 टीम इंडिया आज अपने बैच पर एक सितारा लगाया है। आप जो घर पर देख रहे हैं, आपके बैच पर एक सितारा लगाया है। इस चैंपियन टीम ने पूरे भारत को विश्व चैंपियन बनाया है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मांदना, अमोल मजूमदार, स्नेह राणा, राधा यादव, जमीमा रॉड्रिग्स की ये भारतीय टीम, आपकी, मेरी, हम सब की ये भारतीय टीम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियंस। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये विश्वास रखेंगे कि सपने पूरे हो सकते हैं। उनको देखना चाहिए, उनमें विश्वास रखना चाहिए, खुद में विश्वास रखना चाहिए। उनसे ज्यादा ताकत शायद ही किसी चीज में। इन विजुअल्स के मायने इस स्टेज से बहुत दूर जाते हैं, शायद इस शहर से भी बहुत दूर जाते हैं। उन घरों में जाते हैं जहां छोटी छोटी बच्चियां आज इस टीम को देखेंगी, अगली हैरी दी बनना चाहेंगी, अगली जेमी दी बनना चाहेंगी, अगली इंडियन वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहेंगी। ये जीत पूरे भारत की है, आपकी है, मेरी है, हम सब की है। ये सपने नवरात्रि पे शुरू हुआ ये विश्व कप तब दिखाए थे, दिवाली पर आतिशबाजियों का वादा था। जीत से खत्म होगा ये सफर, उस ट्रॉफी के साथ खत्म होगा ये सफर, उस बैच पर सितारा लगाकर खत्म होगा ये सफर। ये पार्टी जारी रहेगी। आज पूरा भारत एक मुस्कान के साथ सोने जाएगा, वर्ल्ड चैंपियन बनकर सोने जाएगा। वी आर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। क्या कमाल की जीत है, इसका सेलिब्रेशन जारी रहता है। बिल्कुल, आज जश्न अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
जश्न हम अगले 4 साल तक मनाओ, क्योंकि 4 तक तो हमें कोई बदल नहीं सकता। हम चैंपियन हैं और हम चैंपियन रहेंगे। ये चैंपियन टीम है, इसने ना हम सबको वो खुशी दी है जो हमसे पहले वाले क्रिकेटर्स में ढूंढ रहे थे ना। मुश्किल से मिली, मेहनत करके मिली, लेकिन आंसू को मुस्कान में तब्दील किया इस टीम ने, इस खूबसूरत टीम ने। और ये वो हमेशा की तरह ट्रेडिशनल जेमी स्पेशल सेल्फी, मजा आ गया। 100% मजा आ गया। हम तो यहाँ पार्टी कर रहे हैं, अपने थोड़े टेक्निकल स्ट्रगल सॉल्व करेंगे। स्टूडियो में क्या माहौल है? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ भाई, कोई रोको ना, कोई टोको ना इस दीवानों को। और गूगल पिक्सल 10 प्रो में इस मैच की जरा समरी एक बार फिर, मतलब जीना तो बनता है ना। ऐतिहासिक, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। नवी मुंबई में विमेन्स इन ब्लू ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरे देश को था। पहले बल्ले से शिफाली वर्मा का तूफान आया, फिर दीप्ति शर्मा की लाजवाब अर्धशतकीय पारी ने भारत को 298 फॉर 7 विकेट्स के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन मैच का असली टर्निंग पॉइंट आया जब दीप्ति शर्मा ने गेंद से अपनी फिरकी का जादू चलाया। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़ दी। ये जीत महज एक ट्रॉफी नहीं है, ये करोड़ों भारतीय फैंस के लिए सालों का सपना सच होने जैसा है, जिसने आज महिला क्रिकेट को एक नई पहचान दी है। इतिहास रच दिया है इस भारतीय टीम ने। पूरे देश में सेलिब्रेशंस, मैदान पर सेलिब्रेशंस। रीमा अपनी धुन में है, वहाँ हम देख रहे हैं स्टूडियोज में सुषमा दिख रही है, मुझे पूनम दिख रही है, वेदा दिख रही है। आप सब चैंपियंस हैं आज और आप सबको मुबारकबाद, क्योंकि ये बात जो हम बार बार दोहराते आए हैं अपनी कवरेजेस पे, वो ये कि आप सब ने मिलकर एक एक ईंट रखी है भारतीय वुमेन्स क्रिकेट की, वो इमारत बनाई है जिस पर आज वो ताज लग गया है वर्ल्ड चैंपियंस का। सुषमा, पहली फीलिंग्स क्या है? 2017 में बहुत करीब से देखा था इस ट्रॉफी को, आज आप भी वर्ल्ड चैंपियन है। मैंने एक ही बदला, वो जो उस दिन रह गया था ना मलाल, वो सिल्वर मेडल था हाथ में, फाइनल खेले थे ज़रूर, सिल्वर मेडल था, लेकिन आज उसका कलर अब गोल्डन हो गया है। सो ये गोल्डन चैप्टर की शुरुआत की है इन 15 खिलाड़ियों ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, लेकिन थैंक यू इस टीम को कि उन्होंने हमें ये मौका दिया इस पल को जीने का। और सभी भारतीयों को, फैंस को, आई थिंक जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स रहे हैं विमेन क्रिकेट में, सबको बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सबको मुबारकबाद। 100% मुबारकबाद देते थे, मिताली राज को भी बुला लेते हैं। मिताली, मुबारक हो, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। सेलिब्रेशन हम सबकी है। मिताली राज, मिताली, हम यही चर्चा कर रहे थे इतनी देर से कि आप सब ने मिलकर एक एक ईंट रखी है भारतीय वुमेन्स क्रिकेट की इस इमारत की, इस पर आज ताज लग गया है। आप लेकर गई थी वो ट्रॉफी, बहुत करीब से देखी थी 2017 में, आज आप भी वर्ल्ड चैंपियन है। कैसा महसूस हुआ जब वो ट्रॉफी ऊपर उठी? वेल, एक बात तो मैं बोलना चाहूंगी कि वो ट्रॉफी पे इंडिया लिखा हुआ रहेगा अभी आगे से। फाइनली वहाँ पे इंडिया का छाप रहेगा। वो इतने साल देखने को नहीं मिला, करीब से ट्रॉफी आपको 2 बार देखने को मिला, लेकिन हमेशा चाहती थी कि वहाँ पे इंडिया रहे, और वो अब से रहेगा। रहेगा वो नाम हमेशा रहेगा, हमारे दिल में रहेगा, उस ट्रॉफी में रहेगा। उससे गर्व का कोई पल नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं पूरे देश में सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, जगह जगह लोग रोड्स पर हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ क्राउड गया नहीं है, कहीं भी नहीं गया है। और अब हमारे पीछे वो टीम आ रही है अपने लैप ऑफ ऑनर के लिए, उनसे भी चर्चा करेंगे। कुछ उस तरीके के पल है ये कि आप देख सकते हैं इतिहास अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ इतिहास। There you go.
पूर्व खिलाड़ियों ने इस टीम के लिए। सुषमा, ये पल भावुक कर देने वाले हैं। बिल्कुल तने आप हमारे भी स्पीचलेस है और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि जो कमियां ना बहुत क्लोजली 2017 में हमने मिस करी थी, आज वो इन खिलाड़ियों के जरिए हम वो लम्हा जी रहे हैं, वो सपना जी रहे हैं और हर एक खिलाड़ी वो क्रेडिट डिजर्व करता है जिस तरीके का पूरे टूर्नामेंट की जर्नी रही है, सफ़र रहा है। ना केवल इन पिछले एक महीने में, आई थिंक ये बहुत सालों की मेहनत है। ये देखिए, ये विजुअल्स बेस्ट है। 2017 में इन खिलाड़ियों के लिए ट्रॉफी जीतना चाहते थे और आज बहुत अच्छा लग रहा है देख के जिस तरीके से वो ट्रॉफी शेयर कर रहे हैं उनके साथ। अंजुम दी, हरमन को वो हग और झूलन गोस्वामी, यस, ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। ये नया चैप्टर है, नया दौर है, हर एक उस खिलाड़ी का सपना है। बिल्कुल, ये विजुअल्स, वाओ वाओ, कोई शब्द नहीं है। आई एम गेटिंग इमोशनल। थैंक यू टीम इंडिया, थैंक यू। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम सेंस कर सकते हैं। कुछ देर पहले हमने देखा कैसे प्रतिका रावल एक बहुत अहम खिलाड़ी इस टीम की। पूनम, ये दृश्य क्या महसूस कराते हैं आपको, क्योंकि हम यहाँ महसूस कर रहे हैं कि इस टीम को आभास है क्या किया है आप सबने भी, जो पूर्व खिलाड़ी, जो मौजूदा खिलाड़ी इस टीम के, क्या किया है आप सबने विमेंस क्रिकेट के लिए, क्या मायने इन दृश्य के आपके लिए? देखिए, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है ना भारतीय टीम का और जिस तरीके से उन लोगों ने डेडिकेट किया है सारे सीनियर्स खिलाड़ियों को, और जुलू दी, अंजुम दी, रीमा दी, सभी लोग इस ट्रॉफी के हकदार हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से प्रतिका रावल ने इस पूरे इनिंग्स में जिस तरीके से बल्लेबाजी की, भले ही वो फाइनल्स में वो थोड़ा सा उनको मलाल रहा हो कि मैं ये यहाँ तक नहीं खेली, लेकिन वो मलाल जिस तरीके से शेफाली ने अपनी इनिंग बिल्ड की, उसके बाद बॉलिंग में भी आई, उन्होंने 2 विकेट्स लिए। डेस्टिनी बोलते हैं ना, मुझे लगता है शायद यही लिखा था किस्मत में, और ये ट्रॉफी हमारी किस्मत में लिखी ज़रूर थी, क्योंकि वो जो तीसरी बार हम ये ट्रॉफी जीते हैं। 100%। और ये दृश्य थोड़े भावुक कर देने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि आसान नहीं रहा है ये सफर। वेदा, आसान नहीं रहा है ये सफर, सवालों से भरा हुआ रहा है ये सफर इस टीम के लिए, इस कप्तान के लिए, और एक्चुअली आप सबके लिए भी। आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत सवालों से भरा हुआ होता है वो सफर वेदा। उन सारे सवालों का जवाब आज इस ट्रॉफी के साथ। बिल्कुल, ट्रॉफी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जितने भी मेहनत कर रहे हो ना, अनटिल एंड अनलेस वो एक ट्रॉफी हाथ में ना आ जाए, सवाल तो बढ़ते ही जाता है। अभी सब सवाल का जवाब दिया है इन लोगों ने, एंड जो खुशी सबको महसूस हो रही है, आप देख सकते हो कि जुलन भी इमोशनल हो रही है, स्मृति, हरमन, आई थिंक ये एक गिफ्ट है हम सबको इन लोगों ने दिया है। एंड लाइक सुषमा ने मेंशन किया कि हम सिर्फ इनको थैंक यू बोल सकते हैं। कंग्रेचुलेशंस तो दूर की बात है, पहले तो थैंक यू बोलना चाहेंगे कि एक मोमेंट ये हमको ये फील करने का, ये महसूस करने का जो मौका दिया है, आई थिंक ये काफ़ी सालों तक हमारे साथ रहेगा। हमेशा वो कहते हैं फर्स्ट स्पेशल, डेफिनेटली ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए। 100%। और हम ना जब वो ट्रॉफी यहाँ आई और वो ट्रॉफी आप दोनों के हाथ में आई, रीमा, मिताली, मैंने आपके साथ ठीक ठाक काम कर लिया है, मैंने कभी इमोशंस नहीं देखे, आपके हाथ में। आज वो इमोशंस थे उस ट्रॉफी के साथ। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पहले भी सपने देखे थे कि इंडिया चैंपियन बने, वर्ल्ड कप जीते, और करीब भी आए थे हम, लेकिन कभी वो ट्रॉफी बन नहीं पाया इंडिया का। लेकिन आज फाइनली वो भी घर में आपने फेयर एंड स्क्वायर जीता है वर्ल्ड कप, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने ही लोगों के सामने। एंड ये पल बार बार नहीं आते हैं, एंड इट्स हैपेंड एट होम। इंडिया में हमने वर्ल्ड कप खेला है, लोगों को एंटरटेन किया है, टीम ने भी इतनी बढ़िया पूरा टूर्नामेंट खेला है। रीमा, साडा हक ऐथे रख, आप और हरमनप्रीत कौर ट्रॉफी लेते ही ये बात कही आप दोनों ने, क्या है उसके पीछे राज? आपने मुझे सेमीफाइनल में वादा किया था कि आप फाइनल में बताएंगे। ये वही बात है जिसकी मैं बात बार बार करना चाहती थी। हरमन ने 2 दिन पहले मुझे साडा हक की वो वीडियो भेजी थी, मैं दूंगी स्टार स्पोर्ट्स को ताकि वो पूरी दुनिया को दिखाए कि 2 दिन पहले हम डिसाइड कर सकते थे कि वो साडा हक है, उसको इधर रखना पड़ेगा, ये हमारा घर है, ये हमारी ट्रॉफी है। और पहले भी हमने ये पल जिया है, लेकिन डोमेस्टिक में नॉर्थ जोन में जब मैं और हैरी साथ में खेलते थे, मैदान के बीच में चेयर लगा के हमने कहा था साडा हक ऐसे रख, बस इस रीवा पाटिल में उस मूवमेंट के हम बार बार इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उस ट्रॉफी को टच किया ना, जो मूवमेंट था, जो जिस तरीके से
प्लेयर्स आए, उन्होंने समझा कि हमारा सपना उन्होंने पूरा किया है, चाहे वो मिताली हो, जूलन हो, अंजुम दी हो, टाइलर डलजी हो, शांता रंगोस्वामी हो, वो आंखों में सपना था। वो वेदा ने कहा था ना, अब ये ड्रीम नहीं है, वो सपना पूरा हो चुका है। जब उस ट्रॉफी को छुआ, वो पल, वो मोमेंट हमेशा इस दिल में रहेगा। वो साडा हक है, वो एहतेराक है। कमाल है, कमाल है। ये मानना कि ये साडा हक है, ऐथे रख उस हक को। और आसान नहीं होते हैं सफर रीमा, हम ऑफ कोर्स चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जब आप क्रिकेट खेलती हैं और जब कोई लड़का क्रिकेट खेलता है उसमें फर्क होता है, सवालों में फर्क होता है। क्या उन सारे सवालों का जवाब ये ट्रॉफी है? बिल्कुल। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ना बैट को पता है ना बॉल को पता है कि लड़का खेल रहा है या लड़की खेल रही है। जर्सी तो वही है, जज्बा भी वही है। जीता तो भारत ही ना, चाहे वो 18 नंबर की जर्सी विराट कोहली की क्यों ना हो, क्या वो 18 नंबर की जर्सी स्मृति मानदाना की क्यों ना हो। वो कपिल देव ने पहला विश्व कप जीता था या हरमनप्रीत कौर ने पहला विश्व कप जीता है। ये विमेंस क्रिकेट की जीत है। अब यहाँ से ना आप बदलाव देखिएगा। आप लड़कियां और तादाद में आएंगी क्योंकि उनको पता है उनके रोल मॉडल मिल चुके हैं, उनके पेरेंट्स उनको खुद लेके आएंगे। अब बदलेगा, अब हर चीज बदलेगी। वेदा, एक चीज और आपने कुछ देर पहले कही है बात हमारी कवरेज पर कि आप बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होती। आप इमोशनल ही नहीं होती, मैं देख पा रहा हूँ अपने मॉनिटर पे। यहाँ पर भावुक तो आप भी हैं, आंसू तो आपके भी छलक रहे हैं। I mean, emotional, of course, सिर्फ ये कह सकती शायद मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता। इस वक्त भी जो मैं महसूस कर रही हूँ वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप लोग तो वहाँ पे प्रेजेंट हो, आप लोग वो एनर्जी और एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर सकते हो। हम यहाँ से ही वो फील कर रहे हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि आपको और 10x ज़्यादा वहाँ पे फील हो रही है जिस तरीके से ये ड्रीम जो मैं कह रही हूँ ये पूरा हुआ है। एंड या डेफिनेटली आई थिंक आई बीन स्पीचलेस। मैंने बोला है कि मेरे रोंगटे बहुत बार खड़े हुए हैं इस वक्त, अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ। यू नो, वैसे भी मुश्किल है मुझे हिंदी में एक्सप्रेस करना, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके मैं उतना एक्सप्रेस करूँ हिंदी में। बट आई थिंक दिस विजुअल, दिस मोमेंट विल ऑलवेज स्टे विद अस। हम हमेशा याद रखेंगे, हमेशा ये मोमेंट ऐसे ही रहेगा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। वेदा, आज आप कोई भी भाषा बोलिए हम भरपूर समझेंगे। ये प्यार की भाषा है, ये दिल की भाषा है, ये जीत की भाषा है। और जीत भारत के लिए आई है, वो मैच पर सितारा लग गया है फाइनली, जिसका इतने सालों से इंतजार था। आप लोगों ने दस्तक दी 2005 में, 17 में। एक विजुअल और देखा हमने कुछ देर पहले, आप दोनों की मुलाकात हुई, प्रतिका रावल आई। भूलना नहीं चाहिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इस सेमीफाइनल में आते हुए इस वर्ल्ड कप के। बिल्कुल, मतलब पिछले एक साल से जो उन्होंने जो इक्वेशन बनाया था स्मृति के साथ एज एन ओपनिंग पार्टनर, और ओपनिंग पार्टनरशिप्स इतने रन बनाए, आई थिंक इट इज इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स क्रिकेट जो पार्टनरशिप साल में ऑलमोस्ट अक्रॉस मोर देन 1000 रन्स। और इससे पता चलता है कि जो WPL हुई है वो कितने पोटेंशियल प्लेयर्स को इवॉल्व किया है, एंड बिकॉज ऑफ विच इन द लास्ट 2-3 साल हमने देखा है कि इतने टैलेंटेड प्लेयर्स इंडिया खेल रहे हैं, सबको मौका मिल रहा है। आई थिंक आगे जाके इट इज इंडियाज टाइम, अब से इंडिया का टाइम है। ये इंडिया का टाइम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इन स्टैंड्स में अब भी फैंस हैं जो जश्न मना रहे हैं इस इंडियन वुमेन्स टीम की जीत का, अपनी इंडियन टीम की जीत का। अभी भी ग्राउंड भरा हुआ है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं उन स्टैंड्स में अब भी फैंस रुके हुए हैं, म्यूजिक बज रहा है, वो जश्न मना रहे हैं। इन्हीं दिनों के सपने देखे थे जब शुरू किया था क्रिकेट खेलना। बिल्कुल, जब आप बैट उठाते हो तो आप यही तो कहते हो कि पापा मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मुझे इंडिया को जिताना है, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। हर कोई वो सपना जी नहीं पाता, लेकिन आप मेहनत करते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं। कभी तो वक्त आएगा ना, 2025 में वक्त आया, और मैं मिताली से बिल्कुल सहमत हूँ कि अब वुमेन्स क्रिकेट एक नए सुनहरे पन्नों पे नए तरीके से लिखे जाएगी। पहले घमंड था ऑस्ट्रेलिया को कि 7 बार वो जीते थे, अब वो गुरूर हमारे पास है। अब हम बताएंगे कि जीत किसे कहते हैं, जीतना किसे कहते हैं। और बिल्कुल सही कहा मिताली ने कि WPL का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, BCCI का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। सिस्टम बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, फैसिलिटीज बदली और प्लेयर की सोच बदली। WPL आया,
अंडर-23 वर्ल्ड कप की जब हम बात करते हैं ना कि मेंस क्रिकेट में किस तरीके के बदलाव, वो बिलीफ, वो एक पूरी कंट्री का अपनी टीम को बैक करने का, आई थिंक ट्रॉफी जीतने के बाद ना वो शेर के मुंह में ना खून लगने वाली बात होती है। अब हमारे मुंह में खून लग चुका है। भारतीय टीम जानती है कि किस तरीके से ट्रॉफी जीती जाती है और आई थिंक बदलाव यही होगा कि और यंग जनरेशन को इंस्पायर किया है आज इन खिलाड़ियों ने ट्रॉफी जीतकर। और ज़्यादा खिलाड़ी इस प्रोफेशन में इस स्पोर्ट को प्रोफेशनली चूज करेगी, पिक करेगी और आई एम श्योर पेरेंट्स के पास अब वो एक वैलिड रीज़न है अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करने का कि वो क्यों इस सपोर्ट को खेले, क्योंकि इसमें ना हम ग्लोबली अभी चैंपियन है और इसमें हम उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। वो सोच आई एम श्योर वो बदलेगी। पूनम, आपके लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि बड़े शहरों में तो हमने देखा है कि ये गेम बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा है सभी जगह पर, लेकिन क्या इसका असर अब और छोटे शहरों में और छोटे सेंटर्स में, जैसे आप आती हैं आगरा से, वहां पहुंचने लग जाएंगे अब इसका और असर और बच्चियां आना चाहेंगी वुमेन्स क्रिकेट में इस दिन के बाद? जी जरूर, देखिए जिस तरीके की नींव रखी है ना इन्होंने, मुझे लगता है वो सालों साल याद रखी जाएगी। और वो जो आप सितारे की बात कर रहे हैं ना, और मैं तो बहुत छोटे गांव से बिलोंग करती थी, उसके बाद मैं आगरा शिफ्ट हुई। मुझे लगता है अब गांव से भी बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए जाएंगे और उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करेंगे। उनके पेरेंट्स का जो सपोर्ट है ना कहीं गर्ल्स के लिए उतना नहीं होता था जो आज के ये वर्ल्ड कप विनर होने के बाद जो होने वाला है ना चेंजेस, वो बहुत ही बड़ा चेंजेस होने वाला है भारतीय टीम के लिए। उदाहरण है ना घर पे बच्चियों के पास कहने के लिए, ये देखो वो विश्व चैंपियन बने, एक दिन मैं भी बन सकती हूँ, मैं भी बन सकती हूँ उनकी तरह। वो एक अच्छा उदाहरण है घर पे देने का। बिल्कुल, आपने सही बोला कि जो स्टेडियम में जो लड़कियां आई हैं, बच्चे आए हैं देखने के लिए मैचेस, हर एक वो मैच इंडिया का जो यहाँ पे खेला गया था हाई क्वालिटी क्रिकेट था और सभी ने एंजॉय किया एंड आई एम श्योर जो व्यूअर्स देखे हैं वो भी काफ़ी प्रोत्साहित हुए होंगे कि ये एक स्टैंडर्ड है वुमेन्स क्रिकेट का। और मैं शायद सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपने लड़कियों को इस स्पोर्ट में डालें, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल स्पोर्ट और आगे जैसे मैंने कहा है कि विद एवरीथिंग रिसोर्सेज इट्स अ करियर, मतलब आप WPL भी है, फ्रेंचाइज लीग आ गया है, डोमेस्टिक काफ़ी अच्छा हो गया है, तो आई थिंक इट्स ऑन पार विद जो मेंस का सेटअप है अपने कंट्री में, उस हिसाब से वुमेन्स का सेटअप अभी हो गया है। ये करियर है अब, जो घर पर आप देख रहे हैं, सपने संजो रहे हैं, ये करियर है अब। भारत के लिए क्रिकेट खेलना आप भी कर सकते हैं, ये सपने पूरे कर सकते हैं। आपको बता दें कुछ देर में स्मृति मांद्रा जुड़ेंगी जिन्होंने ये सपना पूरा किया है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन ये सफर कुछ वैसा रहा है और इस सफर को अगर देखें आसान नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था कि भारत ने वन साइडेड किया इस सफर को। शुरुआत अच्छी, बीच में वो बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले हारना, लेकिन हर दफे अपनी हार से सीख लेना, क्या वो सबसे बड़ा हॉलमार्क था इस टीम का। 100%। देखिए शुरुआत आप 2 जीत के साथ करते हैं, लेकिन जैसे सीनियर करती जाती है आप 3 मैच हारते हैं, ये टीम बुरी तरह ट्रोल होती है, इतनी बुरी तरह कि कई बार आपको लगता है कि क्यों यार, आप उनकी रियल लाइफ उनके रील की बात करते हैं। कभी आप बात करते हैं कि लड़कियां घर से बाहर निकलनी नहीं चाहिए, लड़कियों का ये गेम नहीं है, सोशल मीडिया क्वीन है, इन्होंने बता दिया कि हम भी तो इंसान है, जीने का हक तो हमें भी है। और हार के बाद, 3 हार के बाद जब ये टीम जीती तो बताया कि करेक्टर, और मैंने उस दिन कहा था तने कि ये टीम अब जब उठी है ना तो अब झंडा लहराएगा, तिरंगा लहराएगा, और वही हमें देखने को मिला। इस टीम ने बताया कि इस टीम का जो एटमॉस्फेयर है वो खुश है, वो ड्रेसिंग रूम जो है वो पॉजिटिव है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ है अमोल मजूमदार का। भाई बिल्कुल चकते इंडिया है, कबीर सिंह ने भाई जिता दिया इंडिया को, और अब यहाँ पर रुकना नहीं है। तो पहला सितारा लगा है, जैसे 7 टाइम चैंपियंस हमें मिले थे ना, अब ये तो पहला कदम है, इतनी बार चैंपियंस बना, आप सोच लीजिए। 100%। अब कुछ देर में हमारे साथ जमीमा रॉड्रिग्स भी जुड़ेंगी, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके की चर्चा हो रही थी उस टीम में। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट को अगर आप देखेंगे, हर मुकाबले में जहां भारत को जीत मिली है, आप वहां एक मैच विनर का नाम लेंगे और लगभग हर मुकाबले में एक अलग मैच विनर है। वेदा, हमने चर्चा की कैसे जब चैंपियन टीम्स बनती है तो पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना पड़ता है। ये वन डायमेंशनल टूर्नामेंट नहीं था, हर मुकाबले में एक नया मैच विनर उभर कर आया भारत के लिए। डेफिनेटली अगर आपको चैंपियनशिप जीतना है तो आपको मल्टीपल मैच विनर्स चाहिए एंड जिस तरीके से टीम ने दिखाई है कि वो 1-2 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, काफ़ी प्लेयर्स हर मैच में अलग अलग प्लेयर्स ने प्लेयर ऑफ द मैच लिया है, वो जो परफॉर्मेंस थी वो रब ऑफ किया है एंड इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपको ये बड़ा टूर्नामेंट ऐसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीतनी है तो आपको मल्टीपल परफॉर्मेंसेस भी चाहिए एंड क्लियरली एक पैटर्न बनी है इस टूर्नामेंट में। अगर आप देखोगे जिस तरीके से ये लोग जीते हैं एंड राइट टाइम में पीक भी किया उन्होंने, डेफिनेटली वो हार आए थे लीग में बट वो फर्क नहीं पड़ता, अब उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा आज के बाद। हम सिर्फ चैंपियंस हैं, अब यही
क्या किया था, डू और डाई मैच सिचुएशन था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहाँ पे परफेक्ट गेम खेले उन लोगों ने, फिर वहाँ पे सेमीफाइनल आया, डिफेंडिंग चैंपियंस थे उस वक्त, ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम था, इस टूर्नामेंट में अनबीटन था, उनको हराया एक हाईएस्ट चेस करके, एंड यहाँ पे एक साउथ अफ्रीका को अभी क्लिनिकल परफॉर्मेंस से जीते हैं। तो जब चाहिए था, जब जरूरत था, तब उन्होंने करके दिखाया, वो काफी है एक्चुअली। और एक एक हीरोज की बात करते हैं क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट्स में, बैटिंग बॉलिंग दोनों में वो हीरोज मिले हैं भारत को। बल्ले के साथ सुषमा, जिस तरीके से स्मृति मानधना ने वो स्टार्ट्स दिए हैं, जिस तरीके से वो बड़े रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर जरूर, लेकिन जब जब भारत को स्थिर शुरुआतों की जरूरत थी तब तब स्मृति मानधना ने अपना बल्ला ऊपर करके कहा मैं करूंगी इस टूर्नामेंट। बिल्कुल तनय, कोई शक ही नहीं है उसमें। जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज से शुरुआत हुई थी ना स्मृति की, वो बल्ला रुका नहीं है। और जो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया ना कि इस बार उनका जो टीम गोल है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो टीम गोल आज अचीव हो गया हुआ है। वो इवेंचुअली ये देखना चाहती थी स्कोर बोर्ड पे, वो उस बड़ी स्क्रीन पे, कि इंडिया इज़ वर्ल्ड चैम्पियन। तो वो वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की है। और हमें आई थिंक क्रेडिट गोज टू प्रतिका को भी, जिस तरीके से दोनों ने वो जब बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप की ज़रूरत थी इंडिया को, तब उन्होंने वो एक कहते हैं ना कि एक स्टेबल शुरुआत दी है इंडिया को। और वो कहीं ना कहीं वो नींव रखना जिस तरीके से स्मृति और प्रतिका ने रखी है हर बड़े स्कोर के लिए, जब जब इंडिया को ज़रूरत थी। 100%। और जैसा वादा किया था, वादे के मुताबिक वर्ल्ड चैंपियन जेमिमा रोड्रिग्स हाजिर हो। हाउ डज इट फील जेमी, जो सपना, एंड आई एम श्योर जैसे हम बाहर से देख रहे थे आपने बड़े सपने विजुअलाइज किए होंगे, क्या उससे बेहतर था वो आज खड़े होना, मेडल पहनना, ट्रॉफी उठाना? ये यकीन नहीं हो रहा सपना है कि हकीकत है, क्योंकि इतना विजुअलाइज, ये जो इंडिया चैंपियंस 2025 जो विजुअलाइज किया है, वी विजुअलाइज इट अ मिलियन टाइम्स, एंड टू हैव इट टुनाइट, वी ऑल वर टॉकिंग, वी कांट बिलीव, लाइक इज दिस रियल, इज दिस रियली हैपनिंग? ओह माय गॉड, आपको क्या, हमें नहीं विश्वास हो रहा बाहर से, लेकिन वो विश्वास हमेशा से था इस टीम में। वी सॉ इट, जब वो उतार भी आए, कुछ ऐसा समय आया इस टूर्नामेंट में जहां वो बैक टू बैक हार रही, वो विश्वास डगमगाया नहीं। I always believe that a champion team is not a team who wins everything, but who knows how to pick themselves up after a fall, and that's what this India team did, and this is a special team. क्या बात है, दैट इज सो स्पेशल। एंड एक नॉक एंड आई सॉ जब आपका वो मेडल प्रेजेंटेशन हो रहा था, जैसे ही आपका नाम आया, देयर वाज दिस लाउड cheer. Bro, from the semi-final night, I can't tell you, my phone has been buzzing and buzzing. I'm just getting so much love and so much support that I had to uninstall WhatsApp. What are you saying? I was anyway off Instagram, but I had to uninstall WhatsApp because like almost 1,000 messages came on my phone. And I just want to thank everyone. I'm sorry if I've not replied, but I just want to thank everyone for messaging me. But I just wanted to keep it aside to play today's final. After winning, we'll celebrate. आज होगा सब WhatsApp. 10,000 मैसेजेस। अब हमारे पास स्टूडियोज में वेदा कृष्णमूर्ति, सुषमा वर्मा, पूनम यादव वो भी हैं। ईयरपीस नहीं है जेमी के पास, तो अगर आपके पास कोई सवाल हो आप मुझे बताएं। Before that, this one's for all of you all too. Thank you so much. Jem, I want to say कि of course it's been a great moment for us, watershed moment. जिस तरीके से oh well, got another world champion now. Yes. बैटिंग छोड़ो, बॉलिंग का बोलो। सबसे पहले मुझे बॉलिंग मिली, मैं इतनी खुश हुई। फील्डिंग करते करते बोर हो जाती हूँ। तैयारी थी नेक्स्ट में, देखा ना हमने क्या तैयारी कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं डोमेस्टिक में भी डाल रही थी अभी। कॉन्फिडेंस तो पूरा था जब मुझे बॉल मिली। कॉन्फिडेंस तो हमने आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया था, सेमीफाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल आया कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, शीज लाइक मैंने पहले भी खेला है, सेमीफाइनल है, ऑस्ट्रेलिया है, खेल चुकी हूँ, क्या बड़ी बात है। मतलब ये सब जितना सिंपल रखूंगा ना चीजों को, उतना आसानी से हो जाता है। तो मैं वही कोशिश कर रही थी कि सिंपल रखूं, क्योंकि ज्यादा हम ये करते तो प्रेशर आ जाता है। तो ये सोचते कितना सिंपल रख सके चीजों को। बट आई थिंक इस टीम ने एक दूसरे को बहुत बैक किया है। जेमी, आप तो बहुत बता सकते हो। मैं तो 2 मैच ही खेलने आई हूँ, मुझे तभी इतना फील हो गया था। आप लोगों ने तो पूरा टूर्नामेंट खेला है। नहीं, बट you know how things are just scripted, that it had to happen and we wouldn't have won without Shifu today. So her coming in was all a part of a bigger plan. भगवान ने मुझे, मैंने स्टार्टिंग बोला भगवान ने मुझे भेजा, कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा। और no, but I'm telling you, this team, no, अलग है यार ये टीम, अलग है, दिखता है। genuinely अलग है। I don't think I've ever been a part of this team, and you know the love, the support, especially when everyone was low, everyone had a shoulder to cry on, everyone had someone coming putting their hand there, and that's what a team, you know, yes we won the World Cup, but I will remember, and we all will remember this support that we felt from this team. Absolutely.
it's actually been so special. आप सबको देखना, आप सबको जीतते देखना. जेमी, आई थिंक आपको जाना है. मुझे बार-बार रिमाइंडर्स आ रहे हैं कि जेमी के और अपॉइंटमेंट्स हैं. Congratulations. इतना शोर मचता है, जेमिमा के pressure और होता है, हम appointments. जितना मर्जी करें प्रेशर नहीं होता. उस प्रेशर में अपने आप को ये कैसे कहना कि काम रखना है, सब हो जाएगा, आराम से करना है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना. इतना आसान होता नहीं है जितना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है. जैसे आज मेरे प्लान से थोड़ा चल के खेलना, क्रीज आगे चल के खेलना, बिकॉज एब्सोल्युटली हम सबको पता है कैपी की कट अच्छी होती है. तो मैं यही कोशिश कर रही थी कि जो मेरे प्लान्स थे आज सब वर्क हो रहे थे. तो आई थिंक वो ही बहुत अच्छा लगा. एंड घर वाले आए हैं, पिताजी आए भाई हैं, आए, भाई आए हैं. पापा नहीं आए. ये तो पूछो कि वो 2 विकेट के लिए उसने बॉल कौन सा डाला, लेग स्पिन पहला और क्या लेंथ. पहला वाला मिथाली जी मैंने लेग स्पिन डाला और फिर मैंने ऑफ स्पिन डाला. ये यानी वैरायटी है. ध्यान से सुनो, ये मतलब हरमन को बता रहे हो कि हरमन हमेशा बॉल करानी है, 1-2 विकेट से पेट नहीं भरता. अब तो करवाएंगे, अब नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे. अब तो बनता है. शिफाली, एक्चुअली आज ना मैच से पहले आपके आई थिंक आपके फादर से बात हुई थी. उन्होंने क्या कहा था एक बार वो सुन लेते हैं. आपको पता था ये हुआ? नहीं सुनाते हैं. क्या बोला था? पहले शिफाली का फोन आया मम्मी के पास, सबसे पहले मम्मी के पास आया था. तो फिर दीदी बोली कि मम्मी एक सरप्राइज है, आप गेस करो. फिर मम्मी ने गेस किया. मम्मी बोली कि टीम में नाम आ गया. फिर वो कहती आपको कैसे पता. फिर मम्मी इमोशनल होगी. ये आपकी सिस्टर और आपके कोच है. हाँ जी, हाँ जी. यार ये सवाल तो सबके जहन में. मंडे दोपहर को आपको फोन आया कि टीम को ज्वाइन करना है. तैयारी थी पूरी? What was your first reaction जब फोन आया? फर्स्ट सेक्शन तो बहुत खुशी मिली. ये ऐसे मैंने बहुत कम देखा है कि कोई ऐसे वर्ल्ड कप में किसी का नाम आ जाता है. बट मैंने अपने आप को बहुत लकी समझा, बहुत खुश हुई. बट यहाँ पे आके मैंने जितने सिंपल चीज़ें रख सकूँ उतना करा. जैसे मैं स्टार्टिंग में भगवान ने कुछ करने के लिए भेजा था और आज विकेट ले लिया. विकेट ले लिया. वो 2 विकेट भगवान के नाम. भगवान के नाम, बिल्कुल सब कुछ भगवान के नाम, सब कुछ भगवान के नाम. ये कब भी ये जो हो रहा है ये सब भगवान के नाम. और जो आप सब लोगों ने, आपने मिथाली दी, आपने पहले जो आप सब ने जो किया है, आज हम यहाँ खड़े हैं. ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम सबको भूले नहीं उस खुशी के भूलना माहौल में. क्यों है. आप लोगों ने तो सब कुछ करा है. हम तो आज गोल्ड मोमेंट में जी रहे हैं. ये बात तो बिल्कुल सही है. आप सबने स्ट्रगल वाला मोमेंट देखा है. लेकिन कुछ आपसे सुषमा वर्मा वेदा भी बात करना चाहते हैं स्टूडियो में. वो जुड़े हुए हमसे क्योंकि वो भी ये पल जीना चाहते हैं. रीमा दी, मेरा मैसेज दो शिफाली को. मुझे ज्यादा सवाल नहीं पूछने. नॉट राइट टाइम टू आस्क हर क्वेश्चन. बस मेरे को थैंक यू बोलना है शिफाली, आप सबको जिस तरीके से आप लोगों ने खिलाया. थैंक यू सो मच. हमें ये हैप्पीनेस और ये ट्रॉफी देने के लिए, ना सिर्फ हमें, पूरे भारतीय फैंस को, और जो ग्लोबली आपने इम्पैक्ट डाला है. थैंक यू सो मच शिफाली एंड टीम. बहुत थैंक यू. खुशी है सुश दी, बहुत खुशी है. यस शिफाली, आज सबकी वजह से हुआ है ये जो आज हो रहा है. मिल रहे हम जल्दी, पार्टी करेंगे. यस यस. पूनम दी कैसा लग रहा है ये बता, क्योंकि सूरत ने दी भाई. पूनम दी तिलिस्मी बॉलिंग करी है तूने भाई. लेग स्पिन आपको पता है ना, मैं डालती हूँ. पूनम दी को पता है मैं डालती हूँ लेग स्पिन के लिए. पूनम दी को पता है. पूनम दी फाइनली सब पता है यार, करके फाइनली वेदा दी. कांग्रेचुलेशन शिफू. थैंक यू सो मच. हमारे सपनों को जिया है भाई तुम लोगों ने, जो सपना हम लोगों ने जिया था. साथ में ये वेल शिफाली. शेफू जो बात करी थी ग्वालियर में, वो तूने करके दिखाया. तूने बोला जब भी मौका मिलेगा मैं टीम को जिताऊंगी. आज तूने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में जिताया है. आई थिंक मैं कुछ बोल नहीं सकती, इतनी खुश हूँ मैं. एंड अगेन थैंक यू सो मच. सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, पूरे वुमेन्स क्रिकेट के लिए. और आप सबकी वजह बिना कुछ नहीं हो पाता. हम तो गोल्डन पीरियड जी रहे हैं. आप लोगों ने स्ट्रगल ऑल टाइम देखा है. तो थैंक्स टू यू ऑल. थैंक्स टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू शिफाली. कितना स्पेशल है ना ये पल. एंड इट इज सो ब्यूटीफुल कि आपको याद है. हम ना ये बात करते हैं अपनी कवरेज पे करते हुए आए कि इन सबने एक ईंट रखी है. आज बन गई है बिल्डिंग विमेंस क्रिकेट की, उस पर ताज लग गया है. लेकिन इन सबने एक ईंट रखी है और आप सब अवेयर है उस बात से. लेकिन थोड़ा और बताइए हमें, जब आप आई इस टीम में, आते ही कोच कैप्टन से क्या बात हुई? क्योंकि वक्त बहुत था नहीं उस सेमीफाइनल से पहले. हाँ जी बिल्कुल, बहुत वेलकमिंग थे सब. कोच कैप्टन ने यही बोला था कि जो फियरलेस आता है वही खेलना है, ज़्यादा नहीं सोचना. तो आई थिंक इतनी अच्छी क्लियरिटी देने के बाद एक प्लेयर को बहुत कॉन्फिडेंस आता है. और सभी प्लेयर्स बहुत वेलकमिंग थे. जैसे मैंने बोला, टीम का बहुत ही अच्छा माहौल है. सब एक दूसरे को बैक कर रहे थे. कोई भी डाउन लग रहा था, सब शोल्डर पे हाथ रख रहे थे कि भाई हाँ करेंगे, जीतेंगे. तो आई थिंक वो चीज़ बैकिंग ईच अदर बोलते हैं ना, वो इस टूर्नामेंट में सबने किया. ये टूर्नामेंट बहुत स्पेशल है सबके लिए. एक चीज बता दो, ये शिफाली का पहला विश्व कप नहीं है. अंडर 19 विनिंग कैप्टन भी है.
रिचा और मैं यही बात कर रहे थे एक बार और जीत गए। मैंने कमेंट्री में भी ये बात की थी Yes. कि भाई रिचा और जुबेर रुस्तम 90 लेके आए बट 91 ले लिया। यार मैं रिचा और मैं एक्चुअली यही बात कर रहे थे कि रिचा हमने सीनियर का प्लान किया था वो आज हो गया, तो मतलब हम दोनों के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। एंड एक और चीज बोलूंगी, जब 2020 वर्ल्ड कप में मैं और हैरी दी हरलिंदी कितना रो रहे थे, मतलब वही मेरे आंसू पूछ रहे थे, उन्होंने आके मुझे बताया वो मोमेंट। वो मोमेंट याद है जब मैं तेरे आंसू पूछ रही थी, हम दोनों बहुत रो रहे थे और हम दोनों आज लिफ्ट कर रहे हैं, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग है। मेहनत करते रहनी चाहिए, सबसे पूरे हो जाते हैं। खुशी के आंसू रो रहे हैं। मतलब मैं कभी भी लेट डाउन होंगी ना, मैं हमेशा ये दिन अपना देख लूंगी। हम सब देखेंगे, हम सब देखेंगे। लेकिन ये सफर एक्चुअली बहुत पहले शुरू हुआ, जब स्क्वाड में नाम नहीं आया, और ये हमने रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि आपने अपने फादर को नहीं बताया था। थोड़ा कठिन पीरियड था आपके लिए वो, वहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट जाना, सर झुकाकर काम करना, वो फेज कैसा था? आई थिंक जब मुझे पता लगा मेरा वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया, मैंने बस यही सोचा ये मेरे लिए बेस्ट टाइम अपने बॉडी पे वर्क करने का और बेस्ट टाइम है अच्छी प्रैक्टिस करने का, और मुझे बस ये था चाहे मैं कहीं भी खेलूँ मैं अपनी टीम को जिताने की सोचूंगी। तो आई थिंक मैंने बहुत चीज़ें सिंपल रखी, और थैंक्स टू ऑल, सब मुझे मैसेज करते थे यू आर डिजर्विंग करके, बट वो चीज़ मुझे मोटिवेशन देती थी, यू नो, सब बोल रहे यू आर डिजर्विंग, मतलब कुछ है मेरे अंदर, तो वो चीज़ें बहुत मोटिवेट करती थी। आई थिंक पेरेंट्स, मम्मी पापा, बहन भाई, सबका, फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। विश्वास था कि हो जाएगा, नाम नहीं आया उसके बावजूद विश्वास था? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, ये तो था ही, बहुत अच्छी टीम बन रखी थी। एंड आई थिंक ये मिक्सचर है टीम, यंगस्टर की भी और सीनियर्स की भी, और सबसे अच्छी बात है सीनियर्स ने स्टेप अप करके सबको ये बोल रखा, किसी को भी जो लगे बोलो मीटिंग में, कोई छोटा बड़ा नहीं है इस टीम में। आई थिंक वो चीज़ सबसे बेस्ट है हमारी टीम की। देखिए अब तो जीत गए, अब तो बैच पर सितारा लग गया है, अब बता दीजिए, क्योंकि मुकाबले से पहले पूछो तो कहते हैं नहीं जी जस्ट अनदर गेम, ये वो। सच बताओ, एक कल रात को नींद आई, दूसरा जब कल रात को मैं 10 घंटे सोई हूँ, सच कह रही हूँ। और आगे तो सुनो, आगे पूछो आगे चलो 10 घंटे सो गए, फ्रेश। आज सुबह आकर टीम में क्या बात है? आज तो सबने यही बोला था कि चीज़ों को सिंपल रखेंगे, सब अपने स्ट्रेंथ को बैक करेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे वर्ल्ड कप फाइनल है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। सब ये सोच रहे थे एक मैच है और इस मैच में सबको बेस्ट देना है, तो बस चीज़ें सिंपल रख रहे थे। हरमनदी, स्मृति दी, जितने भी सीनियर्स हैं, बस सब एक दूसरे को बैक कर रहे थे, यंगस्टर एक दूसरे को बैक कर रहे थे। रिचा, मैं जैसे हम श्री बोल डाल रही थी, उसको भी 1-2 बार बोलना पड़ता है, तो सब एक दूसरे को बैक कर रहे थे। आई थिंक वो बैक की वजह से, वो विश्वास की वजह से, और आप सबके विश्वास की वजह से आज हम जीत गए। हमारा तो आशीर्वाद हमेशा से इस टीम के साथ है, लेकिन सबसे मुश्किल ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलना था या साउथ अफ्रीका के सामने खेलना था? एब्सोल्युटली ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आप सबको तो पता है हम कितने ऑस्ट्रेलिया के साथ हारे हैं, बट वो विनिंग आई थिंक टर्निंग पॉइंट था हमारी टीम का, और आई थिंक वो विन के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आया पूरी टीम में, एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस की वजह से आज हम जीते हैं। और आज सबने बहुत बेस्ट, सबने जान लगा दी थी फील्डिंग में, आप सबको भी दिख रहा होगा, सबने ये बोला था आज लास्ट डे है मैच का, आज सबने 50 ओवर जान लगा देनी है, और वो सबने किया, बहुत खुशी है। और 100 ओवर आप अच्छा भी खेले। कबीर सिंह का रोल कितना अच्छा था पहले बताओ। अमोल सर, एक्चुअली कल मेरे नेट में भी उनसे बात हो रही थी, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मेरे जो प्लान्स थे मैंने उनसे डिस्कस भी किया, तो आई थिंक कोच का जब इतने साल से वो खेले हैं, तो मेरा ये मन में है कि कोच से डिस्कस करूँ, तो उनसे जो भी पूछा उन्होंने बहुत अच्छी क्लियरिटी दी मुझे। तो आई थिंक अमोल सर का, हरमनदी का, स्मृति दी का, जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी जूनियर्स, सबका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इतना वेलकमिंग एकदम से होना। 100%। देखिए इतने सवाल है हमारे पास कि रात कम पड़ जाएगी, लेकिन आप प्लीज मुझे लग रहा था थोड़ी देर बनता है टीम को ज्वाइन करना। कांग्रेचुलेशन शेफाली। कांग्रेचुलेशन शेफाली, वेल बोल्ड। थैंक यू। वर्ल्ड चैंपियन है आप। यस, वर्ल्ड चैंपियन शेफाली वर्मा। लेकिन एक दे देती हूँ। नाउ वेलकम टू द स्टूडियोज वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मांदना। कांग्रेट्स स्मृति। सबसे पहले तो, एंड आई थिंक जतन भाई ने भी आपसे ये सवाल पूछा था, आप कहते हैं आप इमोशनल नहीं है, लेकिन आज क्या वो इमोशंस थोड़े निकल कर आए बाहर? आए काफ़ी आए। आई थिंक 10 साल के सारे इमोशंस बाहर आए आज। बट अनरियल, आई मीन तो भी फिर अभी तक समझा भी नहीं है क्या हुआ है। थोड़ा शायद आज रात को जब सो के कल उठेंगे तब समझेगा कि एक्चुअली क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि रात को सो गया। मेरा भी यही सवाल है। रात की सुबह नहीं है, 2-3 घंटा जितना
जितना भी हम लोग पाए, बट अदरवाइज आई मीन 15-20 दिन क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे, वहाँ से वर्ल्ड कप उठाना, आई मीन इट्स बीन ट्रेमेंडस जर्नी। आप रीमा के साथ जो इंटरव्यू कर रही थी कल शाम को, उसमें आपने कहा था कि उस बैल्कनी से खड़े होकर कितना अच्छा दिखेगा। ये विजुअलाइजेशंस ऑफ कोर्स आपने ट्रॉफी उठाने के लिए किए थे, लेकिन आपकी बल्लेबाजी इस पूरे टूर्नामेंट एक्चुअली पिछले पूरे साल जिस तरीके का साल रहा है, हम ना अपने शोज पर ये जोक करते थे कि आपको अपने आधार कार्ड पर अपना एड्रेस चेंज करके पर्पल पैच कर लेना चाहिए, क्योंकि आप बैटिंग के पर्पल पैच में हो। आप रन ऐसे बना रहे हो जैसे इट्स द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इस दिन के लिए थी वो सारी तैयारी पिछले एक साल? फॉर श्योर, आई मीन आज जब बैटिंग करने गई थी, मेरा फर्स्ट थिंग वही था कि जो भी हुआ है एक साल में, बट आज का दिन है जो सब कुछ मैटर करेगा। बट या मतलब लास्ट एक साल काफी सबके लिए अच्छा रहा है। बट कांग्रेचुलेशंस, स्टूडियो में स्वागत है वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा का भी। क्या बात है, बड़ी सुंदर चाहिए हमारे साथ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तुम्हारा दिन है, तुम बोलो। हम तो बोलते हैं दीप्ति, और एक्चुअली कांग्रेचुलेशंस आप सबके लिए आ रहे हैं। वेदा कृष्णमूर्ति हमारे साथ स्टूडियोज में है, हमारे साथ सुषमा है स्टूडियो में, हमारे साथ पूनम है स्टूडियोज में। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए, ये फीलिंग सिंक इन हो गई है? अभी तो नहीं हो पाई है, अभी इसको टाइम लगेगा। स्टिल ऐसा लग रहा है एक ड्रीम है, और मतलब हम लोग जस्ट सो रहे हैं और इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये हुआ है, और इतने वर्ल्ड कप चले गए उसके बाद। बट काफ़ी अच्छी फीलिंग है फैमिली मेम्बर के सामने जब आप अच्छा करते हो, ट्रॉफी लिफ्ट करते हो, तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा फील होता है एक प्राउड मोमेंट के साथ। आज छोटी ट्रॉफी बड़ी ट्रॉफी सारी घर में आई। सुकून तो मिला होगा। बिल्कुल सुकून बस तभी मिला है जब लास्ट वो विकेट गिरने के बाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टूडियो में वेदा, सुषमा, पूनम सब हमारे साथ जुड़े हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। वो लम्हा वो भी आपके जरिए जीना चाहते हैं। वेदा, सुषमा, पूनम, क्या सवाल है आपका इसके दीप्ति के लिए? दीप्ति, मेरा एक सवाल है गेम से लेकर। आइए करीब आइए। पहले सवाल सब जीते। सवाल पूछने से पहले मैं थैंक यू बोलूंगी, फिर कंग्रेचुलेशंस बोलूंगी। बट उसके बाद जो मेरा सवाल है, जब वो पार्टनरशिप चल रही थी, जब लॉरा अच्छी बैटिंग कर रही थी, आप इनिशियली 1-2 ओवर में ज़्यादा रन्स के लिए गए थे, कि क्या माइंडसेट था जब आप वापस आए वो सेकेंड स्पेल और थर्ड स्पेल में? थैंक यू वेदा दी पहले तो। और जब लॉरा की पार्टनरशिप चल रही थी और जब मैं अपने सेकंड और थर्ड स्पेल में आई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मुझे चैलेंजेस काफ़ी पसंद है पहले से। तो जब दक्षिण का विकेट गया एंड देन उसके बाद जो एक मोमेंटम मिला हमें, उसके बाद लॉरा का भी विकेट गया, तो एक बिलीव था अंदर से कि नहीं, एज अ सीनियर प्लेयर मुझे अच्छा करना है और एक दूसरे को बैक करना है, वो माइंड में चलता है ऑलवेज। थैंक यू दीप्ति। थैंक यू दीप्ति भाई, समा बांध दिया तुम लोगों ने। सत नमन है सभी खिलाड़ियों को। और मुझे एक चीज़ बताना, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यॉर्कर पे वर्क करा है, और जितने भी विकेट्स मैंने देखे हैं ना, ज़्यादातर यॉर्कर बॉल्स पे लिए हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए कुछ खासी प्रैक्टिस करी थी क्या उससे पहले? सॉरी, मेरे को सुनाई नहीं दिया। मैं बोल रही हूँ यॉर्कर पे तूने बहुत सारे विकेट लिए थे अभी इस वर्ल्ड कप में, तो उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करे थे क्या? नहीं, मतलब मेरा जो भी अपना स्टॉक बॉल रहता है उसके साथ में जो वेरिएशन बॉल रहते हैं मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बट ये पता रहता है कि कौन से मोमेंट पे वो यूज़ करना है, कब सेट बैटर खेल रहे हैं, कब न्यू बैटर है, तो उसके हिसाब से मैं ना उसको यूज़ करती हूँ। और प्रैक्टिस भी उसके लिए काफ़ी करी है, लाइक बिफोर द WPL और जो भी हमारे सीरीज होते हैं, तो वो सारे प्रैक्टिस सेशन ने मुझे हेल्प करा ये डिलीवरी के लिए। वेल डन दीप्ति, कांग्रेचुलेशंस और थैंक यू हमें ये खुशी देने के लिए। ये बात बताइए। नहीं, सुषमा भी पूछ रही है कोई सवाल। सॉरी, सुषमा बोल गई। अरे इनके ना प्राइज मनी अरे सुषमा दी को मत छोड़ो। हाँ दीप्ति, मेरा सवाल बिल्कुल आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानने का नहीं है। मेरे को जानना है, मैंने जितना क्रिकेट आपके साथ खेला, मैंने कभी आपको डांस करते हुए नहीं देखा, आपको मस्ती करते हुए नहीं देखा, आपको एकदम शांत कोने में बैठे हुए देखा। क्या आज वो मौका है, आज वो सेलिब्रेशन बनेगी, और किस तरीके से मनाएंगे आप? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अभी तो ग्राउंड पे काफी बिजी है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक सुझाव देना है कि आज तो डांस बनता है यार, वो हेजिटेशन साइड में रख के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप रही है, आपकी वजह से। आई डोंट नो वीडियो पे नहीं दिखता है, बट हम लोग एज अ टीम जब भी हम लोग आज वो डांस बनता है यार, प्लीज स्टेप तो कर। एक दो स्टेप चलो सारे डांस करेंगे। चल सारे करेंगे सारे। नहीं मैं तो म्यूजिक भी नहीं आएगा, उनको तो डांस नहीं आएगा। डांस भाड़ा वो। अब हमारे साथ आप लोग करो, चलो आप लोग करो, चलो। 3, 2, 1 गो, बिना म्यूजिक।
सीरीज वाली प्लेयर मिल गई, साथ में थोड़ा सा भंगड़ा मिल गया, छोटा पता चल गया मुझे आता है, चल थोड़ा सा डांस बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं आती। ट्रू ऑलराउंडर। हर चीज में तो ऑलराउंडर रहना ही है ना, हर चीज आनी चाहिए। लेकिन दीप्ति आपकी बैटिंग में बड़ी इंप्रूवमेंट देखी है मैंने, दीप्ति 2.0 नजर आई है। क्या इसमें WPL का कोई हाथ है या अमोल ने कुछ जड़ी बूटी खिलाई है? मतलब WPL ने भी मुझे जो जब मैं MVP बनी थी उसके बाद काफी MVP की तो आपको आदत हो गई है। नहीं मतलब उसने काफ़ी हेल्प करा WPL वो सीज़न जब रहा, और उसके बाद में जितने भी मतलब उससे पहले मैं बोलूँ जो भी प्रैक्टिस करे थे मैंने मेरे भैया के साथ, बाला भैया के साथ, तो एक शॉट्स पे मैंने वर्क किया था कि कैसे स्लॉग ओवर्स में जाके कैसे ऐसा रहता है कि लाइक लास्ट 10-15 ओवर्स में मेरी बैटिंग आती थी, पहले ऐसा होता था, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करा था। और बस यही था कि जितना पॉजिटिव खेलूँगी उतने ज़्यादा रन्स मैं टीम के लिए कर सकती हूँ। वो हमें नजर आ गया, तभी तो आपके हाथ में ट्रॉफी नजर आ रही है। थैंक यू दीप्ति, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, अभी आपको और डांस करना है जैसा आपने कहा है, प्रॉमिस किया है। तो पार्टी शुरू हुई है। 100%, बट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वर्ल्ड चैंपियन दीप्ति शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. Congratulations. Thank you. देखिए उस तरीके का दिन है ये कि ये सेलिब्रेशंस चलते रहेंगे। मिसेस नीता एम अंबानी, उनकी तरफ से भी आई हैं शुभकामनाएं, आइए सुनते हैं। At the stroke of midnight, our girls have won the first ever ICC World Championship. I think you've made the whole nation swell with pride. The way you have played with courage, conviction and confidence. We are all so proud of you, and I just want to say thank you, Dhanyavad and Jai Hind. ये पल कई दफे कई अलग अलग तरीके से कई एडिट्स में दिखेगा अक्रॉस ऑल सोशल मीडियाज, और ये चलता रहेगा हम सबके जहन में, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते देखा है, आंखों के सामने एक इतना लंबा इंतजार खत्म होते देखा है कि अगले 4-5 दिन तो हम सिर्फ यही विजुअल्स देखते रहेंगे। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुकाबले के बाद होती है उसमें क्या कह रही है कप्तान कौर, आइए सुनते हैं। कप्तान, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग मिठाई का खिलाएंगे अब जीत की, कि हम लोग ने बड़ी मेहनत की है पूरे महीने, है ना। और आज आपसे कोई वैसा सवाल नहीं होगा, जीत मिली इतने टाइम बाद, आज सपना पूरा हुआ है, इसका एहसास क्या है उससे ज़्यादा आप बताएं, और कब आपको लगे कि हम मैच जीत सकते हैं? मैच तो पहली बॉल से ही लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम खेलते हुए आ रही थी लास्ट थ्री गेम्स, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए चेंज हुई थी, स्पेशली हमारा सेल्फ बिलीव, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और वी न्यू हम एज ए टीम क्या कर सकते हैं। तो पहली बॉल से सेल्फ बिलीव था कि नो मैटर, क्योंकि टॉस हम जीतते नहीं हैं, तो पता था कि पहले बैटिंग ही आनी है, तो हार्ड कंडीशंस रहने वाली है बैटिंग के लिए। बट क्रेडिट गोज टू स्मृति एंड शेफाली, उन्होंने अच्छे से पहले 10 ओवर संभाल कर रखे, और उसके बाद एम यही था कि वी न्यू कि अगर हम बड़ा टारगेट सोचेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। मेन यही हुआ कि जितना हम बस बैटिंग करते रहें और गेम को चलाते रहें, और 300 रन बस बोर्ड पे लग जाए कैसे भी करके, और 1 रन बस शॉट पड़ा। बट उसके बाद आई थिंक फील्डिंग में भी एज ए यूनिट आए, जब ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी तब मिलता रहा। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैच था। अभी इजी लग रहा है बोलने के लिए, बट वहाँ पर बहुत टेंशन हो रही थी बीच बीच में, जब वो लोग लॉरा जैसे बैटिंग कर रही थी, बिल्कुल चांस नहीं दे रही थी। बट एंड ऑफ द डे फीलिंग ग्रेट, पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करना है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट आई एम फीलिंग। कैप्टन, कंग्रेट्स ऑन द वर्ल्ड कप विन। इंडियन वुमेन्स टीम इस ट्रॉफी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, प्रीवियस जनरेशंस भी उतना सैक्रिफाइस के साथ काम किया है। हाउ स्पेशल वो मोमेंट मिताली और जुलन के साथ शेयर करना, वो प्रीवियस जनरेशंस के लिए हाउ स्पेशल वाज दिस फॉर यू? जी हाँ, जुलू दी वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट। जब मैं टीम में आई थी शी वॉज लीडिंग द टीम, और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा इन माई अर्ली डेज व्हेन आई वाज वेरी रॉ, डिडंट नो मच अबाउट क्रिकेट। ऐसे ही लड़कों के साथ खेलते खेलते बस
स्कूल के प्रिंसिपल ने पिक करा एंड देन विद इन अ ईयर स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग कंट्री। तो इनिशियल डेज में अंजुम दी ने बहुत सपोर्ट करा था, तो उनका हमेशा याद रहता है कि जब पहली बार टीम के साथ थी तो वो कैसे मुझे साथ में लेके चलते थे, तो वो उनसे जो लर्निंग्स मैंने ली थी वो आगे पास आउट करी। आई मीन बोथ ऑफ देम मीन ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज उनके साथ स्पेशल मोमेंट शेयर करने का मौका मिला और इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट एंड आई थिंक वी ऑल वर वेटिंग फॉर दिस। फाइनली ये ट्रॉफी को टच कर पाए हम। कैप्टन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके मैच के आज के दो जो मेन कैरेक्टर्स थे, दीप्ति और शफाली, उनके बारे में बात करेंगे। दीप्ति का टूर्नामेंट कैसा रहा है? 21 विकेट्स, सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए। आज का मैच बहुत स्पेशल था, 55 रन्स, 5 for 39। उन्होंने कितना बड़ा परफॉर्मेंस दिया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप वो बताएं। और ये बताएं कि अगर शफाली का जो एक इंट्रोडक्शन था एट अ स्टेज वेयर इट लुक्ड कि कैसा टीम बैलेंस करेगी प्रतिका का एग्जिट, और शफाली जो टीम के प्लान्स में नहीं थी, इन वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के टाइम रिजर्व्स में नहीं थी, तो ये स्क्रिप्ट कहाँ से लिखी गई? इन द सेंस कि आउट ऑफ द ब्लू शफाली आई एंड शी प्लेड सच अ बिग रोल, इतना बड़ा रोल इन द फाइनल, तो उसके बारे में बताएं। आई थिंक सब डेस्टिनी होती है, आई रियली बिलीव इन दैट एंड हम बिल्कुल ही चाहते थे कि प्रतिका को कुछ ऐसा हो, और जब उसकी इंजरी हुई एवरीबडी वाज क्राइंग इवन बिफोर दैट व्हेन यास्तिका गॉट इंजर्ड ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग कैंप, एवरीबडी वाज क्राइंग बिकॉज दिस टीम ये टीम बहुत स्पेशल है, एक दूसरे के लिए बहुत प्रे करती है, एक दूसरे के साथ रहती है अप्स एंड डाउन में, एक दूसरे को लेके चलती है। पहले यास्तिका का ऐसे टीम से चले जाना दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस एंड देन एट दैट स्टेज जब अभी बस हम अच्छा करना ही शुरू करे थे देन प्रतिका गॉट इंजर्ड। तो बट जैसे शिफाली आई वी वांटेड कि उसको कुछ ऐसा फील ना हो कि शी जस्ट केम और इंजरी वाला माहौल, हम प्रतिका वाज सो पॉजिटिव। आई थिंक सब ने बहुत हर एक चीज़ को पॉजिटिव लिया, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। स्टार्टेड टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इंजरी, टूर्नामेंट के मिडल में एक बड़ी इंजरी। आई थिंक एवरीबडी वाज सो पॉजिटिव, सब यही सोच रहे थे कि हमारा एंड गोल ये ट्रॉफी है और ट्रॉफी के लिए वी हैव टू की वर्किंग हार्ड फॉर डे एंड नाइट, और उसका रिजल्ट है अभी। वो सुकून दिख रहा है ना उनके चेहरे पर, वो सुकून दिख रहा है, उस जीत का सुकून पूरे भारतवर्ष के चेहरे पर है। आज जब सोने जाएंगे तो एक मुस्कान के साथ जाएंगे, कल सुबह उठेंगे तो आप, मैं, हम सब वर्ल्ड चैंपियंस होंगे इस टीम की बदौलत। कुछ कमाल के मनाएंगे, जश्न तो अभी मनाएंगे ना इसके बाद, इसलिए उसके बाद जब उठेंगे दोपहर को उठेंगे, कल उठेंगे क्या पता। सोने क्यों इस रात के सुबह नहीं है करेक्ट। लेकिन आज की ऐसी तस्वीरें हैं जो इतिहास में दर्ज हो गई हैं, हमारे जहन में दर्ज हो गई हैं, जरा उन पर नजर डालें। Highlights of the day snapped on Google Pixel. Pixel 10 Pro, एक फुल हाउस यहाँ डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर इंतजार किया उस क्राउड ने अपने इन खिलाड़ियों का। 2 घंटे तक रुका रहा ये गेम बारिश की वजह से, लेकिन उसके बाद जब शुरू हुआ तो भारत की पकड़ इस मुकाबले पर हर तरह से मजबूत रही। पहले बल्लेबाजी करते हुए, फिर मिड इनिंग्स में वो जश्न, उसके बाद डिफेंड करते हुए गेंद के साथ कमाल का प्रदर्शन। एक तोहफा दिया है इस भारतीय टीम ने हम सबको। बहुत स्पेशल दिन जरूर है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका जन्मदिन हो आज और ये तोहफा मिल जाए, हाउ स्पेशल वुड दैट बी, राइट सुषमा? ये आपको क्या लगा? आप हमको बताएंगे नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा। हमारे बहुत खबरी जगह जगह है। हैप्पी बर्थडे सुषमा, और इससे बेहतर गिफ्ट कोई मिल नहीं सकता था। मैंने आपको थैंक यू बाद में बोलूंगी, पहले थैंक यू बोलूंगी इस टीम इंडिया को, क्योंकि इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच टीम इंडिया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। भारतीय टीम ने तुम्हें इतना बढ़िया तोहफा दिया, हैप्पी बर्थडे सुषमा, और कह रहे हैं जा आज की सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू रिमादी, थैंक यू सो मच। देखिए भाई, ये पार्टी तो चलेगी, अभी हम केक वेक मंगवाएंगे, हम यहाँ मंगवाएंगे। सुषमा आपके लिए हमने केक ऑर्डर कर दिया है, वो वहाँ पहुँच रहा है स्टूडियोज में। विश यू द बेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, हेल्थ एंड लव दिस ईयर। विश द सेम टू एवरीवन हु इज वाचिंग रेक्सोना क्रिकेट लाइव पर। ये कवरेज लाने में बहुत मजा आया हमको। हमारी बैक एंड पर जो टीम काम करती है, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कैमरास, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। आप, मैं, हम सब वर्ल्ड चैंपियंस हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आज रेक्सोना क्रिकेट लाइव पर इस पेशकश में इतना ही। आप और हम चैंपियंस हैं, आप जाइए और अपना जश्न मनाइए। The ICC Women's Cricket World Cup India 2025. 8 teams will battle it out for the ultimate prize
way special. It's at home. The sort of only cricketer's goal to win a World Cup. Leading my country in home World Cup, very special to me. They kick off their home campaign with a win. What a start to the World Cup. And that's a blinder, has produced a magic moment. We are not here only compete with the others. We are here to win. Marupa Akhtar knocks them over. This is a dream start. England start this tournament beautifully with the ball. India take their streak to 12 against Pakistan. Loves being on the big stage, loves performing. Nadine de Klerk pulls out a stunning innings. What a last over. 1 run and 4 wickets. The supreme all-round capabilities of Ash Gardner. What a time to stand up for your team. She's played a wonderful hand here. Both the openers have scored hundreds in the same innings. Sends them into the semi-final. She's got it now. 7 wickets for King. Best ever figures for an Australian in one-day internationals. You do whatever you can to help this team win games of cricket. That doesn't change, even though this is sort of my last hurrah. Take an absolute bow. It's England against South Africa. Inspiring 100 from the South Africa captain Laura Wolfart. One of the great innings in a semi-final. And the Proteas defy their past, rewriting history. India taking on Australia. Surely the greatest run chase in the history of women's one-day internationals, to tears of joy and passion. They are into the final. There will be a new name on the trophy. The grand final. India versus South Africa. History-making moment. Power, half-century from Shafali Verma in the final. Dipti Sharma, that is a decisive knock. Laura Wolfart gone past 500 runs in this World Cup. Shafali has 2. 100 in the final. Oh, at the third attempt. Brilliantly taken. The new champions of the world. India, led by Harmanpreet Kaur. So this is the all of the broadcasting is over for that. Now I will be ending this with this thing. Yes. Okay. So I will be uploading this on YouTube, so that whenever or wherever someone would want to visit it, whether me or someone else, then they could have it. Okay. So today was 1:54 AM on 3rd of November. The match was on Sunday. Bye.